Hi students, today's video is on the NEET questions from the chapter Chemical Kinetics. I welcome you all to my channel Samjho Chemistry Detail में. Two questions I have written and let's solve the questions. Question number 1 is, for the chemical reaction this nitrogen and hydrogen reacting together to form ammonia, the correct option is, इनमें से आपको चूज करना है कि which one is the correct option. For choosing the correct option, you are to first of all write the rate expression. Now rate expression कैसे लिखा जाता है? What is the rate of the reaction? Rate मतलब आप समझ लो कि speed of the reaction. Now rate of the reaction is change in the concentration of any of the reactant and product, any of the reactant or product divided by the time interval. Now let's suppose a hypothetical reaction अगर आप चूज करते हो, say reactants are getting converted into product. तो अगर हम इसको लिख लेते हैं, say R getting converted to P. R stands for the reactant and P stands for the product. तो इसमें जो है आप रेट को एक्सप्रेस कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन और इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन. नाउ लेट अस सपोज एट टाइम t1 द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज r1 and the concentration of the product is p1. Now at time t2 let us suppose the concentration of the reactant is r2 and that of the product is p2. Then what is the change in the concentration of the reactant? आपको पता है कि with the passage of the time the concentration of the reactants will gradually decrease and concentration of the products will gradually increase. So what will be the decrease in the concentration of the reactant? It will be delta R, and delta R is equal to what? R2 minus R1. And what will be the increase in the concentration of the product? It will be P2 minus P1. P2 is the final concentration, P1 is the initial concentration. Now rate को तब हम क्या लिख सकते हैं? Suppose R1 is the concentration of the reactant at time t1 and R2 is the concentration of the reactant at time t2. Similarly, P1 is the concentration of the product at time t1 and P2 is the concentration of the product at time t2. Then what is rate? Rate is equal to change in the concentration of the reactant or product divided by the time interval. So in terms of the reactant, what we can say? Rate is equal to R2 minus R1 divided by T2 minus T1, or you can say delta concentration of R divided by delta T. When you will express the rate of the reaction in terms of the reactant, then you have to give a minus sign. That means rate is equal to, आपको क्या लिखना है? Rate is equal to आपको लिखना है, rate is equal to minus delta R divided by delta T. Delta R क्या है? It is R2 minus R1. Now always remember one thing, that rate can never be negative, rate is always positive. Now minus sign जब हम rate को in terms of concentration of the reactant जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो माइनस साइन हम इसलिए देते हैं ताकि जो रेट है वो पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि ये जो डेल्टा आर है जो कि R2 माइनस R1 है, डेल्टा आर जो है it is equal to R2 minus R1 and R2 is less than R1. R2 is less than R1 and that is why a negative sign has to be given in front of delta R by delta T so that the rate comes out to be positive. But in case of product, अगर आप रेट को in terms of concentration of the product express करते हो, then there is no problem, आपको प्लस साइन ही देना पड़ेगा, because in terms of the concentration of the product what will be the rate? Rate is equal to P2 minus P1 divided by delta T. P2 is always greater than P1 because product तो
टाइम के साथ साथ ग्रेजुअली प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो है इट विल ग्रेजुअली इंक्रीज एंड दैट ऑफ द रिएक्टेंट ग्रेजुअली डिक्रीजेस। तो P2 माइनस P1 ऑलवेज विल बी पॉजिटिव एंड दैट इज व्हाई रेट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट अगर आप एक्सप्रेस करते हो तो प्लस साइन देना है एंड रेट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर आप एक्सप्रेस करते हो तो आपको नेगेटिव साइन इसलिए देना होता है ताकि जो ओवरऑल रेट है वो पॉजिटिव हो जाए, बिकॉज ये जो डेल्टा आर है इट इज नेगेटिव एंड डेल्टा आर नेगेटिव, सामने एक नेगेटिव साइन है, दोनों मल्टीप्लाई होकर के पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज रेट कैन नेवर बी नेगेटिव, रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो अकॉर्डिंग टू दैट थिंग now we will write the rate expression of this reaction and we will choose which option is the correct option. Now let us write the rate expression. Rate is equal to, in this reaction nitrogen and hydrogen they are the reactants, so it will be minus D concentration of N2 divided by dt is equal to minus 1 by 3 D concentration of H2 divided by dt is equal to 1 by 2 D concentration of NH3 डिवाइडेड बाई dt। यहाँ पे एक और बात है, रेट को आप कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन के इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेस तो कर सकते हो, लेकिन ये जो सारे रेट्स है इनको इक्विवेलेंट करने के लिए आपको इनके सामने जो कोएफिशिएंट है उसी कोएफिशिएंट से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज द रेट्स विल नॉट बी आइडेंटिकल। यू कैन सी हियर कि द टाइम बाय व्हिच 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर रिएक्टिंग एंड 2 मोल्स ऑफ अमोनिया आर फॉर्म्ड, सो यू कैन से दैट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज ट्वाइस ग्रेटर देन रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन। तो इसी तरह से आप देख सकते हो कि रेट जो है इन टर्म्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम नहीं होते हैं, तो इनको सेम करने के लिए, आइडेंटिकल करने के लिए हमें जो रेट एक्सप्रेशन लिखना होता है उसमें कोएफिशिएंट से हमें ऑलवेज डिवाइड कर देना होता है। तो ये हमारा रेट एक्सप्रेशन हो गया। इनमें से देखो जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फर्स्ट ऑप्शन में हाइड्रोजन और अमोनिया को कंपेयर किया गया है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन और अमोनिया को अगर आप कंपेयर करते हो तो इट इज माइनस 1 by 3 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 by dt इज इक्वल टू 1 by 2 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 by dt, लेकिन यहाँ पे ये जो लिख रहा है इट इज नॉट करेक्ट, इट इज रॉन्ग। देन कम टू क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया को कंपेयर किया गया है। आप देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन और अमोनिया में क्या है रिलेशन, माइनस 1 by 3 डी H2 by dt इज इक्वल टू 1 by 2 डी NH3 by dt। इन्होंने माइनस 1 by 3 डी H2 by dt तो लिखा, लेकिन यहाँ पे माइनस लिख दिया, जो कि माइनस नहीं होगा बिकॉज अमोनिया इज ए प्रोडक्ट, इसके सामने पॉजिटिव साइन होगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे नाइट्रोजन और अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन को कंपेयर किया गया है, तो इट इज माइनस डी N2 by dt इज इक्वल टू 2 into डी NH3 by dt। ये भी गलत है। ये गलत क्यों है? बिकॉज ये 1 by 2 होना था, लेकिन इसको 2 कर दिया है। ऑप्शन डी में सही है। ऑप्शन डी में नाइट्रोजन और अमोनिया को कंपेयर किया गया है, माइनस डी N2 by dt इज इक्वल टू 1 by 2 डी NH3 by dt। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सो इसमें जो है अमोनिया और नाइट्रोजन को कंपेयर किया गया है एंड इट इज करेक्टली रिटन, सो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। So this is how we have done number 1. Now let's come to number 2. Number 2 में mechanism of a hypothetical reaction x2 plus y2 producing 2xy is given. फर्स्ट स्टेप में ये जो रिएक्शन दिया है इट इज फास्ट, मतलब ये जल्दी जल्दी हो रहा है, इसका रेट जो है बहुत ही फास्ट है। सेकेंड स्टेप में जो रिएक्शन दिया है इट इज अ स्लो रिएक्शन एंड थर्ड स्टेप में अगेन वन फास्ट रिएक्शन इज बीइंग गिवन। नाउ ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी दिस। आपको जो है ऑर्डर में से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है, तो उसके लिए रेट लॉ लिखना है। रेट लॉ क्या है? आपको पता ही है कि रेट लॉ जो है इट गिव्स द एक्चुअल डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द डिफरेंट रिएक्टेंट्स, ये रेट लॉ है। तो अभी आपको पता है कि कोई भी रिएक्शन अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो है, ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ए नंबर ऑफ स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप्स में वो होते हैं, और हर एक स्टेप में जो रिएक्शन होते हैं उसको जो है एलिमेंटरी रिएक्शन कहा जाता है। एक सिंगल स्टेप का जो रिएक्शन है उसको एक एलिमेंटरी रिएक्शन कहा जाता है।
तो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बहुत सारे स्टेप्स में हो सकते हैं, जो डिफरेंट स्टेप्स में होते हैं उनको सीक्वेंस हिसाब से अगर हम लिखें तो उसी को कहा जाता है मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो ये जो एलिमेंटरी रिएक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं कि एलिमेंटरी रिएक्शंस जो कि एक सिंगल स्टेप में हो रहा है, इनका रेट जरूरी नहीं है कि सबका रेट एक जैसा हो, कोई स्लो हो सकते हैं, कोई फास्ट हो सकता है, कोई मॉडरेट रेट में ऑकर कर सकते हैं। इन ए मैकेनिज्म, जब आप मैकेनिज्म को देखोगे तो स्लो स्टेप जो है वही है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सो स्लो स्टेप of the mechanism is the rate determining step। इसको समझने के लिए आपको एक एग्जांपल हम दे देते हैं। एग्जांपल क्या है, लेट अस सपोज एक साइकिल फैक्ट्री है। तो साइकिल फैक्ट्री में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द साइकिल, जैसे कि हैंडल हो गया, रिम हो गया, सीट हो गया है, इस तरह से डिफरेंट पार्ट्स जो साइकिल का है, वो साइकिल का डिफरेंट सेक्शन में, जो फैक्ट्री है उसका डिफरेंट सेक्शन में उसका मैन्युफैक्चरिंग होती है। इन अ डे हाउ मेनी साइकिल्स विल बी मैन्युफैक्चर्ड, दैट विल डिपेंड अपॉन द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ द स्लोएस्ट सेक्शन। स्लोएस्ट सेक्शन जिस रेट में एक दिन में अगर वो एक ही पार्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो चाहे जो बाकी सेक्शंस है जो कि फास्ट है, प्रोडक्शन बहुत सारे पार्ट्स को कर देते हैं एक ही दिन में, उतना साइकिल बन नहीं पाएगा, साइकिल एक ही बनेगा, बिकॉज जो स्लोएस्ट सेक्शन है वो जो है एक दिन में एक ही पार्ट जो है बना पा रहा है। तो उसी तरह से एक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में भी जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो डिपेंड ऑलवेज करेगा स्लो स्टेप के होने के ऊपर। द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप जब तक नहीं हो पाएगा, ओवरऑल रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो दैट्स हाउ हमें पता है कि स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो वहां से हम जो है ऑर्डर को निकालेंगे। तो स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये जानने के बाद हम यहां से ये जो आपका स्लो स्टेप है नंबर 2 जो कि स्लो स्टेप है, इससे हम रेट लॉ को लिखेंगे। तो ये हमारा रेट लॉ होगा, रेट विल बी प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ x इनटू कंसंट्रेशन ऑफ y2। रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। और ये जो स्लो स्टेप है इसमें दो रिएक्टेंट है, एक तो है x, एक है y2। तो x तो क्या है, ओरिजिनल रिएक्शन में देखो x नहीं है, ओरिजिनल रिएक्शन में जो है x2 एंड y2 है और प्रोडक्ट जो है आपका xy है। तो ये जो x है, x एक इंटरमीडिएट है। तो x एक इंटरमीडिएट है, इस x का कॉन्सेंट्रेशन को आपको यहां पे रिप्लेस करना पड़ेगा फ्रॉम द फर्स्ट रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन में देखो यहां पे तो रेट लॉ हमने लिख दिया। सो रेट विल बी इक्वल टू k इंटू ये जो k है, इस k को हम स्मॉल k लिख देते हैं, into concentration of x into concentration of y2। now come to equation number 1। equation number 1 से हमें मिल रहा है कि x2 जो है ये डिकम्पोज कर रहा है और प्रोड्यूस हो रहा है x प्लस x। तो ये जो रिएक्शन है इसमें आप देख रहे हो कि देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द प्रोडक्ट्स एंड द रिएक्टेंट। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का आपको एक्सप्रेशन यहां पे लिखना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर आप k सपोज करते हो, देन व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर k? एक्सप्रेशन फॉर k विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ x इनटू कंसंट्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ x2। दैट मीन्स इट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ x2। सो concentration of x squared will be equal to k into concentration of x2। that means concentration of x will be under root k into concentration of x2। इस तरह से जो है x का concentration हम जो है निकाल लिए इधर से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, जहां पर एक इक्विलिब्रियम है इन बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स। तो ये जो वैल्यू है x का कॉन्सेंट्रेशन, ये हमें जो है ये रेट लॉ में पुट करना है, बिकॉज x तो आपका रिएक्टेंट नहीं है, रिएक्टेंट आपका x2 और y2 है। तो इसीलिए x की वैल्यू आपको यहाँ पे ये आपको पुट कर देना है। तो क्या आपका निकलता है, लेट अस सी। अगर हम x का कॉन्सेंट्रेशन रेट लॉ में पुट कर देते हैं तो हमारा रेट क्या है, रेट इज इक्वल टू k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ x इंटू कंसंट्रेशन ऑफ y2। कंसंट्रेशन ऑफ x कितना आ गया, अंडर रूट k इंटू x2। सो इट विल बी k इंटू अंडर रूट k इंटू x2
और बाहर में आप जो लिखो concentration of Y2. Now it will be K into root K into under root X2 into Y2. So K into under root K, ये दोनों मिलके एक न्यू कांस्टेंट हम K लिख सकते हैं, और ये जो X2 है इसके अंडर रूट मतलब रूट अगर आप हटा दो तो आप लिख सकते हो X2 का पावर हो जाएगा 1/2 इंटू ये Y2 जिसका पावर 1 है. सो आपका रेट लॉ अल्टीमेटली ये आ गया, रेट इज इक्वल टू K इंटू X2 का पावर जो है 1/2 इंटू Y2. So what will be the overall order? Overall order of the reaction will be equal to X2K with respect to X2, जो कि आपका एक रिएक्टेंट है और दूसरा रिएक्टेंट है Y2. तो X2 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, इसके जो पावर है ये पावर है ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट X2, दैट इज 1/2, एंड ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट Y2 विल बी व्हाट, नो नंबर इज रिटन सो इट इज 1. सो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी 1 प्लस 1/2, सो इट विल बी 3/2, सो इट विल बी 1.5. सो ये आपका ओवरऑल ऑर्डर आ गया. तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. So this is how we have solved this problem. Now question number 3. Let's read the question. What has been written? It is said the rate constant of the reaction A to B. A is the reactant, B is the product. Is this much, 0.6 into 10⁻³ mole per liter per second. If the concentration of A is 5 molar, then concentration of B after 20 minutes. इनमें से ऑप्शन आपको चूज करना है कि A का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको बता दिया 5 मोलर, तो आफ्टर 20 मिनट्स व्हाट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B. तो फाइंड आउट हमें क्या करना है, पहले तो हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन यहाँ पे आपको रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है उसी यूनिट से आपको पता चल जाएगा. रेट कांस्टेंट का यूनिट से ही हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पता चलता है. तो उसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है. देखो, फॉर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आपको क्या इक्वेशन इस्तेमाल करना पड़ता है, K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 - n टाइम इनवर्स. concentration raised to the power 1 - n टाइम इनवर्स, इसमें जो n है, n इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, एंड टाइम जो है, टाइम सेकंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं. सो कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 - n टाइम इनवर्स में अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू 0 पुट करते हो तो n की वैल्यू 0 पुट करने का मतलब क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम k का यूनिट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो k का यूनिट क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर के लिए कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 हो जाएगा. अगर आप n की वैल्यू 0 पुट करते हो तो कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 मींस इट इज मोल पर लीटर, बिकॉज आपको पता है कि कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पर लीटर में एक्सप्रेस किया जाता है. टाइम इनवर्स मतलब टाइम अगर सेकंड में है तो इट विल बी यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इट विल बी मोल पर लीटर पर सेकंड. ये हो जाएगा रेट कांस्टेंट की यूनिट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन. नाउ इफ इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देन यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ n एज 1. अगर आप 1 पुट कर देते तो 1 - 1 ये 0 हो जाएगा, और एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1 ऑलवेज. सो द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विल बी टाइम इनवर्स, दैट मींस टाइम अगर सेकंड में है तो सेकंड इनवर्स, टाइम अगर मिनट में है तो मिनट इनवर्स, टाइम अगर आवर में है तो आवर इनवर्स. इस तरह से होगा. तो अभी हमें यहाँ पे रेट कांस्टेंट का यूनिट देख करके हमें पता लग रहा है इट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड. सो इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बिकॉज जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ही रेट कांस्टेंट का यूनिट जो है ये होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड. तो ये पता चल जाने के बाद जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपको बुक्स में मिल जाएंगे. जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बुक में जो है दिए हुए है, हम पढ़ते भी है लेसन में. तो वही इक्वेशन यहाँ पे जीरो ऑर्डर के लिए जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है वो हमने लिखा है. इट इज रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू A0 माइनस A डिवाइडेड बाई T. यहाँ पे जो A0 है इट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड A इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर टाइम T. तो ये जो डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का,
तो वो कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू K इंटू टी। और A टू B ये जो रिएक्शन है इसमें आफ्टर टाइम T जो कि यहाँ पे 20 मिनट्स है, 20 मिनट्स में A का कॉन्सेंट्रेशन जितना डिक्रीज हो जाएगा B उतना ही बनेगा। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि A का कॉन्सेंट्रेशन जो कि हमें टाइम लिमिट दे दिया है, टाइम इंटरवल दे दिया है 20 मिनट्स, 20 मिनट्स में A का कॉन्सेंट्रेशन जितना डिक्रीज हो रहा है B उतना ही बनेगा। ठीक है, तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं व्हाट इज द डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट A इन 20 मिनट्स। तो वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन of reactant A will be equal to its initial concentration minus concentration at time t। तो A नॉट माइनस A ये होगा डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन। आपका फॉर्मूला है K इज इक्वल टू A नॉट माइनस A डिवाइडेड बाई T। सो A नॉट माइनस A will be equal to what, K into T। so K की वैल्यू आपको दे दिया गया है 0.6 into 10 to the power -3 multiplied by T। T जो है 20 मिनट्स है, तो 20 मिनट्स को आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना है। सो 20 मल्टीप्लाइड बाई 60 इतना सेकेंड हो जाएगा। और यूनिट क्या आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा ये आपका मोल पर लीटर में आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जो है 0.6 इंटू 10⁻³ ये तो मोल पर लीटर पर सेकेंड में है और ये सेकेंड है, तो सेकेंड और सेकेंड इनवर्स कैंसिल होकर के आपका जो कॉन्सेंट्रेशन जो है, जो कॉन्सेंट्रेशन रह जाएगा आपका, वो आएगा मोल पर लीटर में, जितना मतलब B बनेगा। सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 0.6 इंटू 1200 into 10⁻³ so it will be 6 into 120 that means 720 into 10⁻³ so it will be 0.72 मोल पर लीटर, जिसको हम कैपिटल M में लिखते हैं। कैपिटल M स्टैंड्स फॉर मोल पर लीटर। तो ये जो ऑप्शन है इनमें से ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू कि in 20 minutes whatever will be the decrease in the concentration of reactant A, same will be the concentration of reactant B। A का concentration जितना decrease होगा उतना ही amount में B बनेगा। तो इसलिए हमने A नॉट माइनस A की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया which is equal to K into T, ये आ गया हमारा। So this much will be the decrease in the concentration of reactant A and this much amount of B will be formed in 20 minutes। So this is how we have solved this problem। Now let us do question number 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि फॉर ए रिएक्शन बिटवीन A एंड B द ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू A इज 2 एंड द ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू B इज 3। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ A एंड B आर डबल्ड। द रेट विल इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 12, 16, 32, 10। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट A एंड रिएक्टेंट B बता दिया है, तो रेट लॉ तो हम इजीली लिख सकते हैं। व्हाट विल बी द रेट लॉ? रेट इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन A का पावर हो जाएगा 2 और कॉन्सेंट्रेशन B का पावर हो जाएगा 3। With respect to B, the order is 3. With respect to A, the order is 2. So rate will be proportional to A square into B cube. That means rate will be equal to K into concentration of A square into concentration of B cube. ये हो गया। अभी आपको क्या बोला है कि concentration of both A and B are doubled. A और B दोनों का concentration को डबल किया जा रहा है। Then by what factor the rate will be increased? तो लेट अस सपोज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अगर डबल हो गया तो 2A हो जाएगा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अगर डबल हो गया तो 2B हो जाएगा। सो A अगर रेट 1 है हमारा, when the concentrations are doubled, let us suppose the rate will be changed। तो let us suppose the rate को अभी हम रिप्रेजेंट कर रहा है रेट 2, तो रेट एज रेट 2 हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो रेट 2 विल बी इक्वल टू व्हाट? रेट 2 विल बी इक्वल टू K इंटू 2A स्क्वायर इंटू 2B cube। So it will be
2a square मतलब 2 2s are 4 and 2 cube मतलब 8, 8 into 4 that will be 32. So it will be 32 k a square into b cube. तो ये जो k into a square into b cube that is rate 1. So 32 rate 1. That means you can say that जो कि आपका डबल जब आप कर रहे हो कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी का, तो जो रेट है दैट रेट विल बी 32 टाइम्स द रेट ऑफ द फर्स्ट रेट का 32 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. दैट मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन. अप टिल हियर इन दिस वीडियो, एंड आई थिंक द वीडियोज विच आई मेक help you a lot to clear your concepts. Whatever topic I choose for making my videos, I think I give clear explanation to that, and so I request you to subscribe my channel समझो Chemistry Detail में, so that I get motivated and I can help you more and more. So thank you for watching the video.